Good morning students, welcome to your GK class. Today we are going to start the 10th chapter, The Curse of Terrorism. So in this chapter we are going to read about the terrorist or the terrorism activity which happen in different places of the world. Terror is described as the feeling of extreme fear. So terror क्या होता है? terror मतलब होता है एक feeling ऐसी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, extreme fear, बहुत ज़्यादा. Terrorism is used for the violent action in order to achieve political aim or to force a government to act. टेररिज्म क्या है? एक ऐसा वायलेंट एक्ट है, वायलेंट एक्शन है जो पॉलिटिकल एम या किसी गवर्नमेंट को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है. अ टेररिस्ट इज़ अ पर्सन हु टेक पार्ट इन टेररिज्म. और एक टेररिस्ट वो होता है जो टेररिज्म फैलाता है, मतलब जो वायलेंट एक्शन करता है. Terrorists always try to justify their act of violence or say they are fighting for a cause. The fact is that their acts are antisocial and condemnable. Innocent people are usually the victim. जो टेररिस्ट होते हैं वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, कि वो रीज़न देने की कोशिश करते हैं कि हम जो कर रहे हैं उनके पीछे कोई रीज़न है, बट देयर आर नो सच रीज़न. वो जो भी रीज़न होते हैं, वो जो भी एक्शन होते हैं, वो सब एंटी सोशल होते हैं, मतलब लोगों के अच्छे के लिए नहीं होते हैं. और काफ़ी इसकी वजह से जो इनोसेंट पीपल हैं उनको झेलना पड़ता है. टेररिस्ट एक्टिविटी इंक्लूड असैसिनेशन, अटैक ऑन नेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड कॉमन पीपल. टेररिस्ट एक्टिविटी में आता है असैसिनेशन, मतलब किसी बड़ी पर्सनैलिटी या किसी भी पर्सन का हत्या. अटैक ऑन नेशनल मॉन्यूमेंट मतलब किसी इंपॉर्टेंट जगह पे अटैक करना या लोगों पे अटैक करना. Let's do some exercise. A part, read about some terror attack that shook the world and underline the correct option. There are some terror actions, मतलब terrorist activities हैं और events हैं, और हमें underline करना है important, I mean जो correct answer है उसे mark करना है और sentence complete करना है. The 9/11 attack by the Al-Qaeda. 2 planes crashed through the Twin Tower of the World Trade Center in New York City, reducing it to rubble. Another aircraft crashed into the Pentagon, while a fourth failed to reach its target, Washington DC. This happened in 11 of September 2001. So, जो 9/11 के बारे में सबने ही सुना होगा कि 2 प्लेन्स जाके जो ट्विन टावर है, मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है न्यूयॉर्क का, उसमें जाके टकरा गए और वो दोनों बिल्डिंगें ढह गई और उसके अंदर काफ़ी लोगों की मौत हो गई. दिस हैपन इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क. 1 प्लेन क्रैश्ड इनटू द पेंटागन. पेंटागन वो है जहाँ पे जो अमेरिका की नेशनल एक्टिविटीज़ चलती है, एक बिल्डिंग है जहाँ पे ये गवर्नमेंट के वर्क होते हैं. एंड द थर्ड वन एंड द फोर्थ वन जो वॉशिंगटन डीसी में जाके क्रैश करना था, वो अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाया. एंड दिस ऑल हैपन इन द 11 सितंबर 2001. सेकेंड वन, इन 2008 10 terrorists entered India through the Arabian Sea near the gateway of India in Mumbai and opened fire, killing about 160 innocent civilians near or at Victoria Terminus, Nariman House, 2 hotels, Taj Mahal Palace and Oberoi Trident, and a restaurant, Leopold Cafe. So 2018 में अरेबियन सी के थ्रू जो गेटवे ऑफ इंडिया के पास है मुंबई में, वहाँ पे 10 टेररिस्ट ने इंडिया में एंटर किया और 160 इनोसेंट लोगों को मार दिया. और उनके अटैक्स कहाँ कहाँ थे? नरीमन हाउस, विक्टोरिया टर्मिनस, ताज महल पैलेस. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ताज महल पैलेस, ओबेरॉय ट्रिडेंट एंड लियोपोल्ड कैफे. सो द डेट इज नॉट गिवन. वी हैव रिसेंटली memorized this event on 25th of November. It happened on 25th of November. 26th of November, sorry. तभी हम इसे कहते हैं 26/11. It is also known as 26/11. Now the third one.
Paris witnessed suicidal bombing and mass shooting at the cafes, restaurant and a music venue in 13 November 2015. 130 people died in attack. These attacks were considered the deadliest attack on France since World War II. The city was already traumatized by the attack in the office of newspaper Charlie Hebdo earlier that year. So on 2015 in Paris, suicidal bombing की वजह से काफ़ी लोगों की जान गई. Suicidal bombing means the person who's attacking got also killed because the bomb is wrapped around him, and it was one of the biggest attack in the France after the World War II. और उसी साल जो एक और अटैक हुआ था न्यूज़पेपर चार्ली हेब्डो में, जो काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग था, काफ़ी ज़्यादा दुखदाई था लोगों के लिए. नेक्स्ट वन इज द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेबनान, commonly known as the ISIS, was declared a terrorist organization by United Nations. Some also considered it a militant group. It operates mainly in Iraq and Syria. Besides, in these two countries since 2014, it also conducted around 70 terrorist attacks in 20 countries, injuring 1,700 people and killing at least 1,200. It is one of the deadliest new organization. So Islamic State of Iraq and Lebanon को, जिसे हम ISIS भी कहते हैं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है UN ने, यूनाइटेड नेशन ने, जो वर्ल्ड ग्रुप है. और कुछ लोग इन्हें मिलिटेंट ग्रुप भी मानते हैं. इनका जो मोस्ट ऑपरेटिंग एरिया है वो इराक है और सीरिया है. 2014 के बाद इन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ में, अराउंड 20 कंट्रीज़ में अटैक किया है. 70 अटैक किए हैं, जिसकी वजह से कम 1200 लोगों की मौत हो गई है और 1700 लोगों को इंजरी हो गई है. दिस इज़ वन ऑफ द डेडलिएस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेररिस्ट. Boko Haram, which means Western education, is a sin in Afghanistan. Or Nigeria. Write down the Nigeria. The Boko Haram, which means Western education, is a sin in Nigeria-based terrorist organization. It against the education of all people. It carries out attack on schools, churches, prisons and other places. In 2014 it attacked and kidnapped over 275 girls from the school in the town of Chibok. So जो बोको हराम है, जिसका मतलब है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, उसका मतलब वेस्टर्न एजुकेशन, जो एजुकेशन वेस्टर्न साइड्स जो हम पढ़ते हैं, वो सब एक सिन है, एक पाप है. ये किसका मानना है? एक नाइजीरियन बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का. तो वो क्या करते हैं, जो उनके हिसाब से किन्हीं भी लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं होनी चाहिए. तो इस वजह से वो स्कूल, चर्चेज और जो प्रिजन्स है, जो जेल है, वहाँ अटैक करते हैं. 2014 में उन्होंने 275 गर्ल्स को स्कूल से किडनैप कर लिया था. द तालिबान are entrenched in mountainous border between Pakistan and Afghanistan. They ruled Afghanistan from 1996 till 2001. They are infamous for their brutal treatment of women. A teenage girl, Malala Yousafzai, is leading a war of word and ideas against them. She received Nobel Prize in 2014. सो जो तालिबान है, जो एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहाँ ऑपरेट करता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो माउंटेनियस, जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे. उन्होंने 1996 से 2001 में अफ़गानिस्तान में रूल किया और उनका जो वो काफ़ी फेमस है लोगों, मतलब जो टीनेज गर्ल्स हैं उनको ब्रूटली ट्रीट करने के लिए. और जो यहाँ पिक्चर आप देख सकते हैं, मलाला यूसुफज़ई, ये जो लड़की हैं, इन्होंने उनके अगेंस्ट काफ़ी
मतलब कदम उठाए हैं जिसकी वजह से उन्हें ग्लोबल पीस प्राइज मिला था 2014 में। सम टर्म्स वर्थ नोइंग, जो टेररिस्ट एक्टिविटी और टेररिज्म में कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए, जो कुछ ऐसे वर्ड हैं, टर्म है जो हम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम रेड करते हैं यहाँ पे। चलो, मिलिटेंट, व्हाट आर मिलिटेंट? ए पर्सन हु इज़ विलिंग टू एग्रेसिव और फोर्सफुली इवन use violence to achieve his aim, especially to bring about social and political change। ऐसा पर्सन जो सोशल और पॉलिटिकल चेंज के लिए वायलेंस या एग्रेशन का भी यूज़ करे, उसे हम क्या कहेंगे? मिलिटेंट कहेंगे। नेक्स्ट वन इज सेपरेटिस्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ कंट्री दैट वांट टू सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड फॉर्म अ न्यू नेशन एंड इट्स ओन गवर्नमेंट। सेपरेटिस्ट कौन से होते हैं? वो ग्रुप ऑफ पीपल जो अपना अलग ही देश बनाना चाहते हैं, किसी देश में रह के, और इसके लिए वो कोशिश करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेपरेटिस्ट। सुसाइड बॉम्बिंग, एन अटैक इन विच टेररिस्ट एक्सेप्ट और नो दैट दे विल डाई वाइल कैरिंग आउट एन अटैक। सुसाइड बॉम्बिंग क्या होता है? वो अटैक टेररिस्ट का जिसमें उन्हें पता होता है कि उनकी भी डेथ हो जाएगी, एक तरीके से ये सुसाइड हो गया क्योंकि। Fourth one is hijack, when a group of forcible take over a mode of transportation like an airplane or an area and control it. In 9/11 attack in New York, airplanes were hijacked. सब कोई forcefully किसी ट्रांसपोर्टेशन या किसी जगह को हाईजैक मतलब कंट्रोल करता है, तो उसे हम कहते हैं हाईजैकिंग। जो 9/11 अटैक हुआ था ट्विन टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे प्लेन्स थे, उन्हें हाईजैक किया गया था। होस्टेज, ए पर्सन हु इज हेल्ड कैप्टिव बाय एग्रेसर और हेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। होस्टेज वो होता है जब किसी पर्सन को पकड़ मतलब कैप्चर किया जाता है, जो टेररिस्ट है जिस पर्सन को कैप्चर करके रखता है ताकि उसकी कंडीशन पूरी हो जाए या उसकी कोई डिमांड है वो पूरी हो जाए, तो उस पर्सन को हम कहते हैं होस्टेज। जो विक्टिम होता है उसे कहते हैं हम होस्टेज। नाउ द बी पार्ट, movies has been made to depict many of these horrific attacks. Fill in the blanks and on one or two Indian religion film to this list. So काफ़ी movies भी बनी हुई हैं इन terrorist attacks के ऊपर. So according to it we are going to fill the table here. So the name of the first movie is Black Friday, BLACK, Black Friday. It was related to the 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग। 1993 में जो बॉम्बे में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उस पर रिलेटेड है ये, एंड द मूवी वॉज रिलीज्ड इन 2004. सेकेंड वन इज द माइटी हर्ट, HEART, हर्ट, द माइटी हर्ट. So it was based on the slaying of American journalist Daniel Pearl. जो अमेरिका के एक जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर थे डैनियल पर्ल, उनकी मौत पे ये बना था, एंड इट वाज रिलीज्ड ऑन 2007. थर्ड वन इज द हर्ट लॉकर, LOCKER, द हर्ट लॉकर. इट वाज रिलेटेड ऑन इराक वॉर, जो इराक में जो वॉर चल रहा था उस पे बेस्ड था, and it was released on 2008. Fourth one is Argo. The movie name is Argo. It was related to the 1979 US hostage crisis in Iran. जो ईरान में जो US hostage थे उनके ऊपर बेस्ड थी, and it was released on 2012. Fifth one is Zero Dark 30. Zero Dark 30, DARK, Dark. It was based on the 9/11 and the hunt for the man behind it. जो 9/11 अटैक हुआ था न्यूयॉर्क और उसके पीछे किस आदमी का था काम था, उस पे बेस्ड थी, and it was released on 2012. The last one is the attack of 26/11. जैसा कि मैंने बताया 26 नवंबर, आज 27 नवंबर है, सो वी हैव had its anniversary yesterday.
So 26/11 attack on Mumbai. In the blank you have to write Mumbai, and it was released on 2013. So I hope you have understood this chapter. Go through it again, read it carefully so you can memorize it. We will start our next chapter in the next video. Thank you and have a nice day.